Okay, now let's start with Vandana. All right. Yeah. So should I start? Yeah. इच्छा कारेण स्वराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्भो छोजी स्वामी साता छोजी भात पाणी नो लाभ तेजोजी इच्छा कारेण संतिस भगवान अभूत्योमी अभियंत देवस्यम जंकिम ची अपत्यम पत्पत्यम भत्ते पाने विनय व्यावचे अजावे समला उच्चासने समासने अंतर्भाषी उग्री भाषे नमकिम ची मज्ज विनय परिहिम च सुहिम च व बायरम व तुभ्ये जम अहम न जनामि तसम इच्छामि दुक्कडम सुक्षातमा साहेब जी कल्याण हो Sadam. देव गुरु के साथ सब साथ है सब साथ है कल्पना yes now we can start Yeah. So we'll start with Nauka mantra. Guruji. नमो अरिहंताणं नमो सेठाणं नमो आयडियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपापपणासनो मंगलानं च सर्वेशं पठमं हवै मंगलम् So let's start our session now. Welcome all of you to the third edition of Arise web series. It's a great pleasure for me to introduce our special guest today, Sadhvi Weber Shriji Masa, who is going to talk to us about how to combat against COVID-19 and life after the lockdown. We are extremely delighted and honored to have you with us to share your treasured views on Jainism and the current pandemic situation. It's a great pleasure to welcome such a visionary spiritual personality and self-effacing author as a special guest today. Sadhvi Weber Shriji Virat Masa is a visionary spiritual guide with abundant of knowledge of Jain sutras along with Vedas, Upanishads, Bible and other scriptures. Sadhvi Weber Shriji Virat Marasa is a self-effacing author. She is a home for all knowledge seekers. It is difficult to summarize her virtues as she is multi-talented and her knowledge in every subject is dynamic. She is intellectual and exuberant and is capable in guiding everyone to a right and true path. In this world, in this spiritual path, she is a path breaker as numerous of her ideas play the role of torch in the dark for the people. She is the one who initiated the Sadhak Sadhika Diksha and created a new fold of saint world. Understanding the curiosity, fears, and resistance of today's youth, she very well connects with them and lovingly teaches them the religion of life and its practical implementation to improve the daily, day-to-day life. Going further to Krupa's Shopify. Welcome, Guruma. Going further to Krupa Shah's profile, Krupa Shah is an abstract artist, philanthropist, entrepreneur, and a mentor. Krupa Shah has been an active member of FICCI, All Ladies League, and Women Economic Forum, and has also headed important panels. She has participated and conducted groups, exhibition, and conferences in India and abroad, which includes United Nations Day of Vesak, Vietnam, The Art Event, DIFC Dubai, UAE, and the metropolitan Indian cities. For her philanthropic work and contribution to art, Krupa has received both rewards and awards, including Best Artist Award by Global Business Information Iconic Leader Contributing to Better World by Women Economic Forum and Global Asian of the Year Award by World, just a moment, by World Record Foundation.
She has given the expression to different issues and social ethos through her art. From Maharashtra, CM Clarin called for helping the drought-affected farmers in Maharashtra to fighting for the justice for Asifa. Krupa, through her painting, has raised funds and contributed generously for a lot of social causes. Thank you, Guru Ma, for accepting our invitations and being part of our third edition of Rise. Krupa, can you please take it forward and host Guru Ma? Yes. Yeah, thank you so much. Krutik, can all of us go offline? And mute everyone. Krupa, you can start. Yes. Maten Vandami Guruji. What according to you is Jainism and what role does it play in our daily lives? Maten Vandami sir. Yes. Your question is, what is Jainism? What role does it play in our daily lives? हाँ, और जैनिज्म का हमारा डेली लाइफ के अंदर में क्या रोल हो सकता है, क्या होता है? सबसे पहले हम जैनिज्म को समझें कि व्हाट इज जैनिज्म. यह एक अपने आप को जानने का मार्ग है. जिन्होंने अपने आप को कंप्लीटली जान लिया और कंप्लीटली परफेक्ट हो गए, उन आत्माओं को हम जिन कहते हैं. जिन यानी जिन्होंने खुद को अच्छे से पूर्णता से जान लिया और पूर्णतया परफेक्ट हो गए. और जो लोग अपने आप को जानने की यात्रा पर है, खुद को प्योर बनाने की, खुद को परफेक्ट बनाने की यात्रा पर है, उनको हम जैनी कहते हैं. तो सबसे पहले हम देखें कि जैनिज्म का संबंध किसी कास्ट से, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से, किसी पर्टिकुलर रीजन से ऐसा नहीं है. जैनिज्म एक अध्यात्म मार्ग है और अध्यात्म पे कोई भी गतिमान हो सकता है. कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी वर्ण, जाति, गोत्र का, शिक्षित, अशिक्षित, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो भी अपनी आत्मा की शुद्धि की राह पर चल रहा है, जो भी अपने आप को जान रहा है, अपने आप की कमियों को, कमजोरियों को दूर कर रहा है, वो हकीकत में जैन पथ पर ही गतिमान है. चाहे उसका नाम, उसने जैन पथ, जैन नाम सुना भी हो या ना भी सुना हो. हमें जैन को एक समुदाय विशेष के रूप में नहीं देखना चाहिए. हकीकत में हमने इस जैन धर्म को एक समुदाय का धर्म बना लिया, इसमें सीमित बना दिया. तो इससे सीमित होने से क्या हुआ कि जो एक्चुअल जैन धर्म का प्राण है वो हमारे हाथ से फिर चला जाता है. फिर हम कुछ क्रियाओं, कुछ संस्कारों को ही जैन धर्म मान लेते हैं. तो यह है सेल्फ प्योरिफिकेशन का वे. और इस बात पर जो भी आदमी चलता है वो अपने आप को परफेक्ट करता जाता है. अब यह है कि डेली रूटीन के अंदर हम इसको कैसे जी सकते हैं. तो जो अवेकन लाइफ स्टाइल है वो जैन मार्ग है. जैन मार्ग क्या है कि आप जागृति पूर्वक जियो, होशोवास से जिंदगी जियो. जो भी कार्य करते हो उसमें आपका विवेक जागृत रहे. तो अगर हम दो शब्दों में बात करें इस जैन मार्ग को हम डेली रूटीन में कैसे जी सकते हैं, तो वो दो शब्द होंगे विनय और विवेक. अगर आप विनय पूर्वक जीते हो और विवेक यानी जागृति पूर्वक जीते हो तो आप हकीकत में जैन मार्ग को जी रहे हो. और अब आप कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, चाहे इवन आप बिजनेस कर रहे हो, आप खाना पका रहे हो, आप बच्चों का पालन कर रहे हो, आप सोशल वर्क कर रहे हो, लेकिन हर एक स्थान पर आपका विवेक जागृत रहे, यानी आप सजग रहो, सहोश रहो और विनय पूर्वक गति करो, तो आप जैन मार्ग को ही जी रहे हो. क्योंकि जैन मार्ग का मतलब कोई पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल नहीं है, अवेकन लाइफ स्टाइल है. जो भी कर रहे हो वो जागृति पूर्वक करो, वो जैन मार्ग है. तो इसीलिए डेली लाइफ के अंदर क्या एवरी मोमेंट ही ये हमेशा अप्लीकेबल है ही. तो हमें इस जैन मार्ग को ऐसे समझना चाहिए. वेरी वेरी ट्रू साध्वी जी. आपने जैसा बोला कि सेल्फ प्योरिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड विद दैट विनय एंड विवेक, these are the three very much bullet points which the person has to cultivate in their life right in the morning when they get up to the time they sleep. Yes. Wonderful. Okay. Another thing I wanted to ask Guru Ma, that in this collective karma, hence the entire world had been locked down. What are your views on this? अब कुछ तो सामूहिक कर्म है ही जिसके कारण से ये लॉकडाउन जब हुआ है तो पूरा विश्व एक साथ प्रभावित हुआ है. तो आपका यहाँ प्रश्न है कि ऐसे क्या सामूहिक कर्म है जिसकी वजह से ये पूरा लॉकडाउन हुआ और पूरा विश्व प्रभावित हुआ. तो हम देखें कि पिछले कई सालों से जब से साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत
मतलब अनक्रेडिबल प्रोग्रेस की है, तब से हम सारे ही लोगों ने कहाँ कहाँ हम अपने प्रकृति के नियमों का हम उल्लंघन करते जा रहे हैं। जो जो नेचर्स लॉ है उन सबको हमने तोड़ने की कोशिश की है ना। चाहे समुद्रों को ले लो, नदियों को ले लो, वनों को, जंगलों को ले लो, हमने हर जगह पर आदमी ने प्रकृति को कष्ट पहुंचाया, प्रकृति के प्रवाह को, प्रकृति के संगीत को उसने तोड़ा है। तो जब प्रकृति का लगातार हम अतिक्रमण करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वापस प्रकृति प्रतिक्रमण करवाएगी ना। आप जो कर्म करते हैं वही कर्म आपको रिटर्न लौट करके आता है ना। तो अतिक्रमणों का प्रतिक्रमण हो रहा है इस टाइम के अंदर में। सही बात। Guruma, what is the impact of Navkar mantra on our lives and what transformation can one feel through it? आपका क्वेश्चन है कि नवकार मंत्र का हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है और उससे हम अपने अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन फील कर सकते हैं। तो पहले हम नमोकार मंत्र का एक छोटा सा शब्द नमो को ले लें, तो नमो हमें प्रणाम करना सिखाता है, झुकना सिखाता है। और नमो के आगे 5 पद और है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये 5 पदों की संरचना कुछ ऐसी है कि इस दुनिया में अध्यात्म के मार्ग पर जो कोई भी बढ़ा है वह फर्स्ट स्टेप पे है या लास्ट स्टेप को प्राप्त कर चुका है, उन सबको प्रणाम इन 5 पदों में होता है। जो फर्स्ट स्टेप पर है वो साधु है और जो लास्ट स्टेप पर पहुंच गया वो सिद्ध है। तो साधु से लेकर सिद्ध तक की सारी ही अवस्थाओं को जब हम नमस्कार करते हैं, तो हकीकत में ये नमस्कार हमें अपने भीतर में उन क्वालिटीज को प्राप्त करने के लायक एक पात्र बनाता है। तो जैसे जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं सुबह उठते ही, तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा मिलती है। तो हम जितने पवित्र भावना से उनको प्रणाम करते हैं, उन वे भावनाएं लौट करके हमारे पास इस भांति आती है कि बड़ों के गुण हमारे में आते हैं। ऐसी नमोकार से क्या होगा कि हम जिन क्वालिटीज को प्रणाम करेंगे वो क्वालिटीज हमारे अंदर बढ़नी चालू हो जाएगी। अब अगर यहाँ नमोकार को खाली हम पढ़ते हैं और अगर भाव सहित, ज्ञान सहित पढ़ते हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर है। अधिकांश लोग, हम सभी जैन हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमोकार को केवल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, इसके मीनिंग्स को नहीं जानते, इसकी डेप्थ को नहीं जानते। उनके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वे जरूर इसकी डेप्थ को जाने कि नमोकार है क्या, क्योंकि नमोकार एक ऐसा मंत्र है जो हमारे पूरे जीवन के आकार को बदल सकता है। जब हम कहते हैं नमो अरहंताणम, तो हकीकत में हम आत्मा की योग्यता को प्रणाम कर रहे हैं, एबिलिटीज ऑफ द सोल। तो जब हम आत्मा की अर्हता को, योग्यता को प्रणाम करते हैं, तो हमारे अंदर की एबिलिटीज भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है। इस भाव से करो कि हे अरहंत प्रभु, आप परम योग्य हैं, आपकी योग्यताओं को मेरा प्रणाम और आपकी कृपा से मैं भी योग्य हो रहा हूँ, इसलिए आपका आभार आभार आभार। जब हम इस भाव से नमोकार का एक पहला पद भी करेंगे, तो प्रतिदिन हमारे में आत्मविश्वास डेवलप होगा और आत्मा की योग्यताएं बढ़ने लग जाएगी। ऐसे जब हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं, तो सिद्ध का मतलब है कि जो कंप्लीटली परफेक्ट हो गई वो आत्मा है। तो कंप्लीटली परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन इज कॉल्ड सिद्धत्व। तो जब हम उनको प्रणाम करें और ऐसी भावना के साथ प्रणाम करें, ऐसे ज्ञान के साथ प्रणाम करें कि हे सिद्ध प्रभु, आप सर्वथा शुद्ध हो, आपकी तरह मैं भी शुद्ध हो रहा हूँ, इसलिए आपका आभार आभार आभार। तो हर दिन इस भाव में आने मात्र से, चाहे हम 2 सेकंड के लिए इस भाव में आ जाए, तो हमारे भीतर एक शुद्धता प्रकट होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम जिसका ध्यान करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। एक नियम है, जो जैसा ध्यावे वैसा पावे। आप जैसा ध्यान करोगे वैसे बन जाओगे। अब जब हम अरहंत को करें तो एबिलिटीज ऑफ द सोल को करें, सिद्ध को करें तो परफेक्शन ऑफ द सोल को करें, और जब आचार्य को करें तो आचार्य मतलब वन हु इज लीडर, जो संघ का नेतृत्व कर रहा है। तो यहाँ हम लीडरशिप क्वालिटीज को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य मतलब एक व्यक्ति नहीं है, आचार्य का मतलब वो क्वालिटीज है, वो पोस्ट है जिसमें क्वालिटीज होती है। तो जब हम आचार्य को प्रणाम करें तो हमारे अंदर ये भाव आए कि लीडरशिप क्वालिटीज को, एडमिनिस्ट्रेशन पावर को, राइट डिसीजन मेकिंग पावर को, उनको हमारा प्रणाम हो। और तब हम इस भाव के साथ प्रार्थना करें कि हे आचार्य देव, जैसे आपके अंदर प्रशासनिक योग्यताएं हैं, दृढ़ संकल्प शक्ति है, सम्यक आचरण शैली है, ऐसी ही योग्यताएं मेरे भीतर भी प्रकट हो रही है, इसलिए आपका आभार आभार आभार।
तो आचार्य की क्वालिटीज हमारे में डेवलप होगी और हम जिस भी फील्ड में है वहां हमारे पास में राइट कंडक्ट होगा और लीडरशिप क्वालिटीज आ सकेगी। और फोर्थ, नमो उवज्झायणम, उपाध्याय को नमन। कौन है उपाध्याय, इसको जरा जाने हम। उपाध्याय मतलब कि एक वो व्यक्ति जो परमात्मा की वाणी को, वितराग परमात्मा की, अरहंत परमात्मा की वाणी को, भगवान महावीर की वाणी को हमारे पास तक लेकर आता है, हमें टीच करता है, हमें एजुकेट करता है। तो उपाध्याय के अंदर लेक्चरशिप क्वालिटीज होती है, उसके पास में मल्टी डायमेंशनल विजडम होता है, उसके पास में राइट मैनेजमेंट पावर होती है। तो जब हम उनको प्रणाम करें तो उनकी क्वालिटीज का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करें। और तो यहाँ पे रुके, मेरा ऐसा कहना होता है कि नमोकार मंत्र आप फटाफट मत पढ़ो, जैसे अधिकतर लोग पढ़ते हैं, एकदम स्पीड में गाड़ी छोड़ते हैं कि बस हमें नमोकार की संख्या को पूरा करना है, या नमोकार के नियम को पूरा करना है, या नमोकार पढ़ने का एक कल्चर पूरा करना है। इस तरीके से मत पढ़ो। जब आप नमोकार पढ़ रहे हो तो उसको, उसके साथ एकदम एसोसिएट हो जाओ। चाहे आप गिनो भी मत, आप 5 भी ना करो, आप 1 भी करो, लेकिन इतना आनंद के साथ करो कि जब आप कह रहे हो नमो उवज्झायणम, तो आपका भाव इतना गहरा हो कि हे उपाध्याय भगवान, आपकी अनेकांत प्रज्ञा, निष्पक्ष ज्ञान अभिव्यक्ति क्षमता और कुशल प्रबंधन क्षमता को मेरा नमन हो। आपकी कृपा से ये गुण मेरे भीतर भी प्रकट हो रहे हैं, इसलिए आपका आभार आभार आभार। आप बोलने के साथ ही अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फील करोगे, बोलने के साथ ही फील करोगे। और अगर ऐसा रेगुलर करने लग जाओ तो हर दिन अपनी एबिलिटीज को डेवलप करना स्टार्ट कर दोगे। फिर नमो लोय सव साहुणम, साधुओं को, लोक के समस्त साधु आत्माओं को मेरा नमन हो। साधु आत्मा का मतलब क्या है कि जिसके भी पास में राइट अंडरस्टैंडिंग है, सम्यक दर्शन है, वो साधु है। तो जब हम कहें नमो लोय सव साहुणम, तो हम ऐसा भाव करें कि लोक में मौजूद समस्त साधु सरल आत्माओं, आपके सम्यक दर्शन गुण को, आपके निष्पक्ष अवस्था को, आपके भीतर के अनकंडीशनल प्रेम को हमारा नमन हो, नमन हो, नमन हो। आपकी कृपा से ये गुण मेरे भीतर भी प्रकट हो रहे हैं, इसलिए आपका आभार आभार आभार। पूरे भावों से भर के करें। जब हम 5 पदों के साथ बात कर रहे हो तो ऐसा महसूस करें कि वो जागृत है, वो हमारे सामने है, वो हमारे साथ है, हमारे भीतर है। और इस तरह से जब हम फील करते हुए नमोकार के ध्यान में जाते हैं तो मात्र ये 5 से 10 मिनट का ध्यान, मात्र 5 या 10 मिनट का ध्यान आपके पूरे दिन को बदल डालेगा, आपकी पूरी जिंदगी को बदल डालेगा। हर दिन आप चाहे एक बार भी करो, लेकिन इस नमोकार की आभार प्रार्थना के साथ करो। ये आभार प्रार्थना जो है वो जीवन के आकार को बदल देगी। जय हो। जय हो। वंडरफुल, दैट वाज अ वेरी इंसाइटफुल जर्नी ऑफ नवकार मंत्र के हमें बहुत शांति से गिनना है, बिकॉज यस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्पीड से चालू होता है और कहाँ पे खत्म हो जाता है, बट दैट इज ओनली, आई वुड से, मे बी अ लैक ऑफ नॉलेज और मे बी समथिंग एल्स। बट धर्म के जो भी शब्द है, जो भी उच्चार करे, उसको बहुत शांति से और बहुत क्लियर होने चाहिए, तो ही वो शब्द का पावर अपने अंदर भी आता है। वंडरफुल, वंडरफुल गुरुपाद। According to you and Jainism, who is Arihant Prabhu? हाँ, प्रश्न ये कि अरहंत प्रभु कौन है। यहाँ मैं पहले आपका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाहूंगी। इट इज नॉट अरिहंत प्रभु, इट इज अरहंत प्रभु। एक्चुअली द प्रॉपर वर्ड इज अरहंत, लेकिन आफ्टर सम टाइम बोलते बोलते अपन बोलते हैं ना, भाषा भी बदल जाती है, तो अरहंत का लोगों ने अरिहंत कर दिया। एक्चुअली द वर्ड इज अरहंत। अरहंत का मतलब होता है कि जिसने अपने भीतर की योग्यताओं को, अपने भीतर की आत्मा की अर्हता को, अवस्था को उजागर कर लिया, वो अरहंत होता है। यानी वे सारे इंसान, वे सारे मनुष्य जिन्होंने अपने आप को कंप्लीटली जान लिया, अपने भीतर के मोह को, दोष को जीत लिया, वो अरहंत होते हैं। ऐसी अरहंत कोई भी हो सकता है, मतलब किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, समुदाय में वो कोई भी व्यक्ति जिसने आत्मज्ञान कंप्लीटली पा लिया, उसको हम अरहंत कहते हैं। तो अरहा शब्द है, इसमें मुख्य शब्द है अरहा, अरहा से अरहंत बना। अरहंत का बहुवचन शब्द अरहंताणम बनता है, ठीक है ना। अरहा का मतलब होता है अरहा, जिसके लिए अब कोई रहस्य बाकी नहीं बचा। अरहा, रहा कहते हैं रहस्य को, जिसके लिए अब कोई रहस्य शेष नहीं बचा, उसको अरहा कहते हैं, यानी केवल ज्ञान जिसको प्रकट हो गया। Lovely, wonderful, very nice. Abhi, even I will improve this from Arihant to Arhant. Yes. Yes, okay.
Guruma, you have R&D center for scientists and researchers who can come over to your Pali ashram and do the research. Can you please elaborate on that? That what do they do, and they what kind of a research do they do there? यहाँ पे दो तरह की रिसर्च होती है. पहले आपका क्वेश्चन वापस रिपीट करती हूँ कि पाली आश्रम में R&D सेंटर डेवलप होने जा रहा है, तो उसमें हमारा क्या मनोभाव है. तो मैं ये बताना चाहूंगी इस पाली आश्रम के बारे में कि यहाँ हम दो तरह की रिसर्च की बात कर रहे हैं. पहली रिसर्च तो खुद में रिसर्च हो, क्योंकि जब तक सेल्फ रिफॉर्मेशन ना हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ना हो, तब तक बाकी का सारा नॉलेज एक विद्वान बना देगा, आदमी को ज्ञानी नहीं बनाएगा. यू नो, दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है. विद्वान तो हो सकते हो आप बहुत सारी किताबें पढ़ करके, डिग्रीज हासिल करके, पर वो हमारा मोटो नहीं है कि आदमी को केवल विद्वान बनाया जाए. विद्वान होने से अंदर का व्यक्तित्व नहीं बदलता है, चेतना नहीं बदलती है. तो फर्स्ट तो आदमी को अपने आप में रिसर्च करनी होगी कि उसके क्या विशेषता है जिसको वो जगा सकता है, और कहाँ वो अटक रहा है, कहाँ उसकी कमजोरियां हैं जिसको वो जीत सकता है. तो हम चाहेंगे कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, अभी भी आते हैं और आगे भी आने वाले हैं, वो सब लोग पहले अपने आप पर काम करना सीखें, है ना. हर हाल में कैसे समता में रहना, कैसे मस्त रहना, कैसे प्रसन्न रहना, हर हाल के अंदर कैसे अपने भीतर की अवस्था को आनंदमय बना पाना, ये सीख लो. ये सबसे ज्यादा सीखने लायक चीज है. उसके बाद जिसके अंदर जो क्वालिटी है, उसको उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स में गति करने के लिए हम मदद कर सकें, है ना. और यहाँ पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पूरा जैसे अपन एक ट्रेडिशनल सेंटर्स देखते हैं वैसा नहीं होगा. ट्रेडिशनल में क्या होता है कि हर एक चीज का एक पर्टिकुलर फिक्स नियम होते हैं, उसी में आपको आगे गति करनी होती है. यहाँ पर ऐसा कोई नियम निर्धारित नहीं है. यहाँ हर व्यक्ति के लिए उसका विवेक ही उसका नियम होगा, और हर व्यक्ति का रास्ता अनूठा होगा. जैसे कोई है आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर मास्टर है, तो उसको हम जैन दर्शन के अंदर, जैन साहित्य के अंदर ऐसा बहुत बड़ा विभाग है जहाँ आर्ट के ऊपर बहुत सारा काम किया जा सकता है ना. प्राचीन काल से होता रहा है, तो उस पर उसको गति करने के लिए उसको मार्ग दिया जाएगा. किसी को है संगीत में आनंद आता है, तो उसको संगीत में रिसर्च करे, संगीत में आगे बढ़े, उसके लिए उसको यहाँ मार्ग मिलेगा. किसी को है दर्शन शास्त्र में रुचि, फिलोसॉफी में है, किसी को साइकोलॉजी में रुचि है, किसी को और कोई सब्जेक्ट में, साइंस के सब्जेक्ट में रुचि है. तो उन सब, जैनिज्म बहुत वास्ट है. अगर हम देखें ना, हमारे प्राचीन काल से हमारे आचार्यों ने हर एक फील्ड में अलग अलग तरीके से काम किया. इवन देन एस्ट्रोलॉजी पे इतना काम हुआ है, इवन देन आयुर्वेद पे इतना काम हुआ है. तो हम उन सारे कामों को अपने जीवन में कैसे, हर व्यक्ति की जिसकी जैसी रुचि होगी उसको उसकी रुचि के अनुसार हेल्प करके उसके मार्ग में आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि वो अपनी काबिलियत को जगा सके और मानव समाज की बेहतर सेवा कर सके. Lovely. That will be so nice that so many people will get an opportunity. वो भी through the माना जाता है कि Jainism is a part of scientific way of living. So it will be a wonderful platform for those upcoming people who are really looking out for a platform. वो हमारे यहाँ पे मिलेगा. That was wonderful, very nice. Guruma, what is the meaning of faith? What is faith, and how do you deal with anxiety, stress, and fear? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ, और इस फेथ के साथ हम अपनी एंजाइटी, फियर, इन सबको कैसे डील कर सकते हैं. तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले फेथ क्या है, पहले अपन इस पे बात करें. फेथ का मतलब है राइट नॉलेज विद सेल्फ रियलाइजेशन. जब आपको आत्मविश्वास होता है और सही ज्ञान होता है, तब आपको फेथ होता है. बाकी ब्लाइंड फेथ भी होता है जहां ज्ञान नहीं होता है, और जहां ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कभी कभी आदमी को. हम उस फेथ की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं. एक्चुअल द फेथ क्या है, जहां आपको रियलाइजेशन हुआ है, कुछ अनुभव हुआ है, और वह अनुभव आपके अंदर, अनुभूति जो होती है वो आपका खुद का प्रमाण होती है. आपके अंदर वो ताकत ऐसी होती है जिसके आगे किसी और की कोई भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. तो फेथ को यहाँ पे हम समझेंगे कि एक रियलाइजेशन होना, सेल्फ रियलाइजेशन होना विद राइट नॉलेज. जब ये फेथ आपके पास होता है, तो इस फेथ के 3 फंडामेंटल पिलर्स होते हैं, 3 आधारभूत स्तंभ होते हैं इस फेथ के.
उसमें पहला आधारभूत स्तंभ है कि आदमी को अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है। अगर वो अपनी क्षमताओं को अपने से नहीं जान सकता तो अपने इष्ट से जान सकता है। कि जैसे आपको ये विश्वास हो गया कि मेरा गुरु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो गुरु के साथ होने से आप अपने आप को हमेशा आश्वस्त पाते हो, विश्वस्त पाते हो। तो एक ये अलग आपको कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ, अपने भीतर एक क्षमता का एहसास जागृत हो गया है ना। दूसरा आपको एक फेथ होता है जब आपको राइट नॉलेज होता है। इसको हम कहेंगे कि वैज्ञानिक समझ होना। वैज्ञानिक समझ होने का मतलब यूनिवर्सल लॉस को अगर आप जान सकते हो तो ही आपका फेथ राइट फेथ होगा। तो यूनिवर्सल लॉस को जानना भी बेहद जरूरी है। वो फेथ का सेकंड फंडामेंटल पिलर है। और थर्ड, जब आपको अपनी ही कलाओं को, आपके भीतर कौन सी कला है, क्योंकि हम दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई विशिष्ट कला, प्रतिभा, योग्यता ना हो। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई तो कला प्रतिभा है ही। तो जब एक व्यक्ति को अपनी कला का ज्ञान होता है और वो अपनी कला को निखारने की क्षमता जान लेता है, खुद अपनी कला को निखार सकता है, उभारना चालू कर देता है, तब उसके अंदर एक फेथ डेवलप होता है। जैसे देखो ना, आपका बच्चा जब किसी कंपटीशन में हिस्सा लेता है और जब वो फर्स्ट होकर के लौटता है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट। रियलाइजेशन होने पर आपको राइट फेथ होता है। ठीक है, जब आपके अंदर ये 3 फंडामेंटल पिलर्स आ गए कि आपको अपनी क्षमताओं पर ज्ञान हुआ, क्षमताओं पर विश्वास हुआ, जब एक व्यक्ति को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हुआ, यूनिवर्सल लॉस का ज्ञान हुआ, जब एक व्यक्ति को अपनी जीवन की कला, शैली, प्रतिभा, अर्जित योग्यता, इसका एक विशेष महसूस हो गया कि हाँ, मेरे पास ये कला है, मेरे पास ये इल्म है, तब क्या हुआ कि वो फेथ हो जाने के बाद आदमी अपनी जिंदगी में आने वाले कितने ही तरह के चैलेंजेस को आसानी से झेल लेता है ना। अब आपका प्रश्न ये है कि फेथ होने से आदमी कैसे अपनी एंजाइटी को डील कर सकता है। तो मेरा यहाँ पर कहना थोड़ा डिफरेंट है कि एक्चुअली ये है कि जब आदमी को अपनी क्षमताओं का ज्ञान हो जाता है तब उसको कोई एंजाइटी नहीं रहती। एंजाइटी तब तक ही है जब तक यूनिवर्सल लॉ की नॉलेज नहीं है। एंजाइटी तब तक ही है जब तक उसको क्षमता का ज्ञान नहीं है। एंजाइटी तब तक ही जब तक कि उसको अपनी खुद की कला और प्रतिभा के बारे में वो अभी ना वाकिफ है, तब तक ही एंजाइटी है। उसके बाद में कोई एंजाइटी नहीं। अगर राइट नॉलेज है तो उसको कोई एंजाइटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि फेथ एक उगते हुए सूरज की तरह है और सूरज आ जाने पर कभी अंधेरा नहीं रहता। तो अगर फेथ भी है और आप बोलो फियर भी है, तो फेथ और फियर माना दोनों एफ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। ट्रू। फियर है तो फेथ नहीं, फेथ है तो फियर नहीं। Yes. Exactly, Guruji. That I completely understand, because there are a lot of people who always say कि हमें तो विश्वास है इनके ऊपर, हमें फेथ है इनके ऊपर, ये होगा वो होगा, लेकिन जब वो पर्टिकुलर मोमेंट आते हैं तब सब हिल जाते हैं, सब हिल जाते हैं। वो फियर आ जाता है, वो एंजाइटी आ जाता है, वो द्वेष आ जाता है। दे कैन नॉट कंट्रोल देयर एंजाइटी, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर फियर इन स्पाइट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, इन स्पाइट लिसनिंग एवरीथिंग। सो वो जो बीच की जो कड़ी रहती है वो कैसे फील की जाती है, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो? उसके लिए क्या होता है कि जब लोगों, आप पहला क्वेश्चन वापस रिपीट करते हो कि जब लोगों को फेथ भी है और फियर भी आ रहा है तो उसके बीच की वो कड़ी को कैसे फिल किया जाए। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि उनको अपनी ही फेथ में और डेप्थ में जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, इसीलिए उनको फेथ में फियर आ रहा है, वरना फेथ में और फियर एक साथ नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी नहीं होने की वजह से उनको फियर हो रहा है। इसको कहूंगी सम्यक ज्ञान का अभाव है। और सम्यक ज्ञान का क्यों अभाव है? क्योंकि हमने बेसिक रूल्स में ही हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। हमें जानना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे अपने भावों के कारण से होता है, हमारे अपने विचारों के कारण से होता है। अगर हम अपने भावों को सही नहीं करके ये सोचे कि दूसरे लोग हमारे बारे में अच्छा कर देंगे, किसी और के करने से, या दूसरे लोग मेरे सुख और दुख के जिम्मेदार है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम पहले ही गलत रास्ते में जा चुके हैं, क्योंकि हमने किसी और को रिस्पॉन्सिबल मान लिया कि उसने मुझे दुख दिया। अब कहते हैं मुझे बहुत भगवान पे भरोसा है पर फला आदमी मुझे दुख दे रहा है। तो अब ये दो बातें ऑपोजिट है एक्चुअल में, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं एक्चुअली। अगर आपको भरोसा है और फिर कह रहे कोई और दुख दे रहा है तो आप गलत समझ रहे हो। कोई दुख दे ही नहीं रहा है, हमने कुछ ऐसे विचार किए हैं या अभी हमारा विजन ऐसा है कि हमें सामने वाला दुख देता हुआ प्रतीत हो रहा है, यू नो, वो दुख दे नहीं रहा है, हमें केवल फील हो रहा है क्योंकि हमारा परसेप्शन रॉन्ग है उस व्यक्ति के संबंध में।
अब देखो कि जैसे कोई भी कार्य में इवन ने अपन फसलों को पकने में देख लें, बारिश की बहुत जरूरत होती है, ठीक है, पर क्या हम मानते हैं कि केवल बारिश की जरूरत होती है, सूरज की धूप की जरूरत नहीं होती? हम जानते हैं कि जितनी बारिश महत्व रखती है उतना ही सूरज की धूप भी महत्व रखती है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि बारिश को हम सुख माने और सूरज की धूप को अगर हम दुख माने, तो इस जिंदगी में सुख और दुख मानने के लिए, एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, दोनों ही हमारे को पकाने के लिए है, हमारे भीतर की योग्यताओं को जगाने के लिए है, ठीक है ना। यानी फेवरेबल कंडीशन हो या अनफेवरेबल कंडीशन हो, ये सारी कंडीशंस होंगी तभी तो हमारे भीतर की एबिलिटीज खिल के बाहर आएगी। अब कोई आदमी कहे कि बहुत फेक है तो मेरे को तो केवल बारिश ही बारिश मिलनी चाहिए, तो बाबा अपनी आपकी फसल पक ही नहीं सकेगी ना, गल के खत्म हो जाएगी, ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएगी। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाओ क्या? प्लीज, वी वुड लव टू। क्या हुआ, आप जैसी एक सुंदर महिला थी, थैंक यू। किसी गुरुजी पर बहुत भरोसा रखती थी, बहुत विश्वास करती थी, गुरुजी को परमात्मा की तरह मानती थी। तो एक बार उसके पुत्र रत्न की उसको प्राप्ति हुई, संतान हुई। तो वो अपनी संतान को लेकर के गुरुजी के पास गई और गुरुजी को चरणों में अपने बेटे को रखा और कहा कि गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा अपनी जिंदगी के अंदर बहुत काबिल इंसान बने, बहुत काबिल इंसान बने। तो गुरुजी ने उसके बेटे के सिर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए बोला कि इसकी जिंदगी में बहुत संघर्ष आए। तो वो माँ घबरा गई, वो बोली गुरुजी मैंने तो आपको कहा था ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरा बेटा बहुत काबिल बने, और आप कह रहे हो कि बेटे की जिंदगी में बहुत संघर्ष आए, आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? तो गुरुजी बोले कि पुत्री तुम समझी नहीं, अगर संघर्ष नहीं आएंगे तो ये काबिल कैसे बनेगा? हाँ, ट्रू है ना। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। तो वो विश्वास चाहिए। हाँ, तो सारे संघर्ष आदमी को काबिल बनाने के लिए आते हैं। जगा देती सुप्त पौरुष है सदा मजबूरियां, तय होने को ही बनी है जगत में सब दूरियां। लवली, तो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट होगी ना तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि फेथ भी है, फेयर भी है। हम देखने का हमारा नजरिया में अभी थोड़ी कमी है, त्रुटि है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा सही ज्ञान के लिए जागरूक रहो, जहां से भी सम्यक ज्ञान मिलता है उसको लेते जाओ, ताकि हमारी दृष्टि के अवरोध दूर हो जाए, हमारा परसेप्शन क्लियर हो जाए। और जब परसेप्शन क्लियर हो जाएगा तो हमें लगेगा कि अगर कुछ प्रतिकूलता आई है तो अच्छा इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आई है। अब वो चाहे फिजिकल इम्यूनिटी हो और चाहे आपकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी हो, दोनों तरह की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशंस भी आती ही है। तो उसको देख करके कभी ऐसा नहीं सोचना कि मेरा तो फेट डगमगा गया है, ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ में, मैंने तो इतनी भक्ति पूजा की थी, देवता क्या काम आया। अरे भैया, तुम्हारी भक्ति पूजा ये नहीं थी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख ना आए, वो इसके लिए थी कि तुम्हारे अंदर इतना विश्वास डेवलप हो जाए कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा देवता है और तुम उसको जागते हुए, उसको जानते हुए जियो। ऐसा मत फील करो कि मैं असहाय हूँ, ऐसा फील करो कि मैं कंप्लीट हूँ। सो बेसिकली वही टाइम पे आपकी परीक्षा होती है कि आप कितना विश्वास करते हो भगवान पे। बराबर है। अगर वो टाइम पे अगर विद द स्टॉर्म्स अगर आप हिल गए तो आपका विश्वास टूट गया, लेकिन आप खड़े रहो कि नहीं मेरा भगवान मेरे साथ है, मैं इसमें से भी आसानी से हंसते हंसते निकल जाऊंगा, देन आई थिंक you get through it. Yes. Lovely, wonderful. How can we free ourselves from the bondage of attachment? How can we free ourselves from the bondage of attachments? मोह जो बोलते हैं ना, मोह ही आधा तो पूरा अप एंड डाउन कर देता है सिचुएशन। मोह अप एंड डाउन कर देता है, तो हम उसके पहले बेसिक रीजंस को ढूंढे कि वो मोह है क्या है। अगर हम उसकी साइंस को खोजें, और हम सब खोज सकते हैं, आई थिंक पढ़े लिखे लोग हैं और रिसर्च बुद्धि भी हमारे पास में, तो थोड़ा अपने अंदर जाओ तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि जब हम अपने सुख के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरों से सुख चाहने लगते हैं, है ना, तब हम बंधन में आ जाते हैं। जैसे ही हम देते हैं तब तक बंधन में नहीं है, हम चाहने लगे हम बंधन में चले गए। ऐसा है या नहीं? ट्रू,
आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। ठीक आप है? किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, खत्म हो। हाँ, तो अब आपको क्या करना है जिंदगी के अंदर, क्यों एक एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। आप जीवन में कभी सोचो ही मत कि आपको अपने आप को फुलफिल करने के लिए किसी और की जरूरत है। क्योंकि जैसे आप दूसरों के चेहरे पर मांगने के लिए देखते हो, वैसे ही आप अपने आप को इंफीरियर बना लेते हो, और इंफीरियर बनाते ही अब आपको बंधन बंधन बंधन, मतलब वो खुद ही तनाव लगता है, क्योंकि आप वो अपने असली रूप में नहीं आए। अपने असली रूप में नहीं आने की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो ही जाता है। तो क्या करना हमको जिंदगी के अंदर, हमारा एटीट्यूड हमेशा ये हो कि मैं जहां भी हूँ वहां उन लोगों की जिंदगी में रंग भरने के लिए काम, मेरा होना औरों के लिए खुशियों वाला हो, सबके लिए खुशियों वाला हो, और मेरी प्रसन्नता अनकंडीशनल हो। ठीक है? अगर आप अपने आप में अनकंडीशनली प्रसन्न रहना सीख जाओ तो आपको कोई मोह का बंधन नहीं पड़ेगा। फिर आप हमेशा प्यार लुटाने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं। ठीक है? ये आई थिंक ये एक उपाय करके तो देखें, फिर देखो कितना मजा आता है जिंदगी जीने में। ट्रू, वेरी ट्रू। ये एक टाइप का ऐसा है कि ग्रीड मत रखो, बस खाली हाथ खुले रखो और प्यार बांट दो। हाँ, बाकी हाथ भी अपनी चीज खुले अपने रखो, हिसाब दिल से भी खुला फॉलो। रखो, भाव खुले रखो, बस मस्ती लुटाते रहो। सही बात। ट्रू, वेरी ट्रू, वंडरफुल। What is the role of art in Jainism in terms of sculpture and painting? मतलब जैन धर्म का क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ कला स्कल्पचर? में, हाँ, जैन कला धर्म में। में। देखो, जैन धर्म में बहुत सारे महान महान हम देखें कि कलाविद, कलाकार, सब तरह के लोग हुए जिन्होंने तीर्थंकरों की प्रतिमा, मंदिर, मैन्युस्क्रिप्ट्स, कितनी कितनी चीजें यहाँ डेवलप हुई है ना। और प्राचीन शतियों से, मतलब प्राचीन काल से, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इन सब पे बहुत रिसर्च कर रहा है, जो ये बता रहा है कि कौन कौन से सदियों में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ भारत में डेवलप हुई, भारत में और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में। तो ये सब चीजें जो जैन धर्म में डेवलप हुई, अगर अपन खोज करें तो जैन धर्म में आर्ट कहाँ से आई, और किसी भी आर्टिस्ट हो, आर्ट कहाँ से आती है। सबसे पहले देखो, कोई भी आदमी बाहर में कोई पेंटिंग कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने अंतर को ही तो बाहर प्रकट कर रहा है। I am the self example. हाँ, यू आर द एक्सपीरियंस। तो क्या होता है कि हमारे इस, देखो, ये धर्म को आज बहुत सीमित अर्थों में समझा जा रहा है जैन धर्म को। अगर इसको वाइडर एस्पेक्ट में देखें तो ये एक जीवन जीने की वह उत्कृष्ट शैली देता है जहां आदमी अपनी जिंदगी को बहुत आनंद में जीता है, पूर्णता से जीता है, और अपनी सारी कलाओं को आध्यात्मिक रुख देता है। मतलब उसकी कलाएं उसके अंतर से आती है। जितना जितना उसका इनर डेवलपमेंट होता जाता है, वो अंदर की काबिलियत, किसी की संगीत में फुर्ती है, किसी की कला में फुर्ती है ना। कोई गाएगा, कोई नृत्य करेगा, कोई हंसेगा, कोई ध्यान में जाएगा, सबकी अलग अलग अवस्थाएं प्रकट होगी। तो कैसे महान आचार्य हमारे यहाँ हुए जिन्होंने कला के संबंध में मतलब इतने समाज को दिया। आप अगर पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स उठा के देखो तो उन्होंने तीर्थंकरों के समवशरण के चित्र बनाए, और उस जमाने में तो आज जैसे ना कलर्स थे, ना सारे मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। उन्होंने ताड़ पत्तों पर भी ऐसे ऐसे काम किए, इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई, पूरे लोक का चित्र बनाया, है ना। और तीर्थंकरों की माता के 14 सपनों के चित्र बनाए। ये सारे चित्र उन्होंने कैसे बनाए होंगे? ये उनकी कला तो है। तो अगर हम कला की बात करें तो जैन साहित्य भरपूर है, समृद्ध है कला से। और जो जैन समाज के मंदिर है, अपन राजस्थान में दिलवाड़ा का मंदिर ही ले लें, आबू का, वो अपनी कला का अनूठा नमूना है। ये सारी कलाएं, ये सारी प्रतिमाएं ध्यानस्थ साधकों के भीतर से उत्पन्न हुई, वो क्षमताएं थी जो समाज के अंदर कला के रूप में अभिव्यक्त हो गई। अध्यात्म का व्यवहारिक पक्ष को कला कह दूंगे, मतलब अंदर का भाव प्रकटीकरण हुआ। हाँ, एग्जैक्टली आपने जो बोला वैसे ही हुआ है मेरी लाइफ में। unknowingly, knowingly, I started my paintings and I went deep into it, and I became another personality because I worked on my inner self automatically.
Yes. So I may not be explaining in words like how you are, but yes, my paintings really speak everything. कि आप Wow. जो inner soul हो, वही soul आपका बाहर आता है, and that is one cosmic connection and nothing else. Yes. Great. I can definitely relate. आपने ये जो बोला, it really touched me because even I am into that phase of painting. So it is, yes, it is very true. So what is the science behind wearing the white cloth mask in Jainism? I mean, abhi to everybody is wearing right now. So I definitely wanted to ask you because आप जमाने से पहनते हैं, बहुत पहले से पहनते हैं. So what is the scientific reason to wear the mask? मोमबत्ती पहनने के पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? अगर आपको सच बताऊं तो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना? द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. Exactly. एक टाइम था जब हमारे जैनों के सूत्र शास्त्र जो आगम वाणी है, वो लिखने के लिए कागज का प्रयोग नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं अवेलेबल थी. उस जमाने के अंदर वो वृक्षों के पत्तों को काम में लिया करते थे, है ना? और वो प्राकृतिक स्याही बनाते थे और उस स्याही से पत्तों के ऊपर लिखा जाता था. अब जिन दिनों के अंदर, जैसे पर्युषण पर्व आदि दिनों के अंदर, जब ये सूत्र पढ़ने होते थे, तो अब ये सूत्र जिस कागजों पे लिखे हैं, आप समझो वो पत्ते हैं और ताड़ पत्ते हैं, बड़े बड़े विशाल पत्ते हैं, और वो ऐसी स्याही से लिखे गए हैं कि अगर उनके ऊपर जरा भी एक थूक का अंश भी चला गया तो वो पूरी स्याही खराब हो जाएगी और एक पत्ते के पीछे बाकी के सारे पन्ने खराब हो जाएंगे. तो हमारे पूर्वजों ने जब सोचा और देखा कि यहाँ बोलते बोलते कभी न कभी थूक उछल जाता है और शास्त्र के शब्दों पे थूक जाते ही वो पूरा खराब हो जाता है, तो उन्होंने सोचा कि जब हमें ये पढ़ना होगा तब हम अपने कपड़े के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर कुछ ऐसा कपड़ा बांध ले ताकि थूक से हमारा शास्त्र खराब ना. ओके. तो ये सबसे बड़ा रीजन तब ये था. इस वजह से मुख वस्त्रिका स्टार्ट हुई, मतलब मुख पे बांधना तब स्टार्ट हुआ. अब देखो, तब जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये आज की तरह नहीं था. तब एक बड़ा कपड़ा लिया जाता था, उसको कान पे टांगा गया था, ऐसे कान पे टांगा. जब उनको लगा कि पढ़ते पढ़ते वो कान से नीचे आ जाता है तो उन्होंने उसको बांध करके पढ़ा. जैसे आपने देखा होगा मूर्ति पूजक लोग जब मंदिर में जाते हैं तो पीछे बांध लेते हैं मुख पोस्ट को. फिर उनको लगा कि उसको उसमें पढ़ने में आवाज बाहर नहीं आ पाती है, क्योंकि एकदम टाइट बांध लिया है तो आवाज नहीं आ पाएगी. तो उन्होंने सोचा कि इसमें और कैसे हम इसको और ज्यादा अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बना सके. तो देखो, हम सब हर चीज को कन्वीनियंट बनाते बनाते कितना उस चीज के अंदर चेंजेस ले आते हैं. तो उन्होंने फिर इस कपड़े को पहले यहाँ पर कान के अंदर लकड़ी का वो डॉट डाल करके उस पे डोरे से कपड़े को बांधा. फिर यहाँ पे ब्लड आया, तो उनको लगा कि ब्लड आता है तो शास्त्र नहीं पढ़ सकते. तो और इन्वेंशन करते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं धागा इसमें डाल करके वो टांग दिया जाए. और ये करते करते बढ़ते बढ़ते धागे के साथ मुखपत्ती बनने लग गई. तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि शास्त्र की संभाल हो सके, शास्त्र के ऊपर थूक ना उछले. ठीक है. अब इसके बाद में जब ये चीज चालू हो गई, धीरे धीरे पहचान का रूप ले लिया, और अब श्वेतांबर मूर्ति पूजक और स्थानकवासी, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा भेद ही मुखपत्ती बांधने का हो गया. मुखपत्ती का रखते तो दोनों ही हैं, लेकिन बांधने वाले स्थानकवासी कहला गए और नहीं बांधने वाले मूर्ति पूजक हो गए. तो साइंटिफिक रीजन एक टाइम में तो ये था, और बाद में ये पहचान भी बन गई. बाद में इसके साथ और कई सारी बातें भी जोड़ दी गई है, पर इसको पहनने का मेन कारण तब ये था. आज की दुनिया जो पहन रही है वो वायरस के और बाहर के कई सारे प्रदूषणों से बचने के लिए वो नाक को भी ढक रही है, वो मास्क पहन रही है. और वो एक वही बात है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. अब आज जरूरत इतनी होगी क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो गया है, तो पॉल्यूशन से अपनी सांस को बचाने के लिए उनको ये पहनना पड़ रहा है. और स्पेशली कोरोना से बचने के लिए. हाँ, एक्चुअली. तो जब मौसम अच्छा होगा तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. True, very true. Wonderful. I would like to ask you one more question. Your guru is not a saint. Normally ऐसा कहा जाता है कि always you have a guru who is into the same family, and he is a sanskaric person, but still you had him as a guru. So can everyone have like this? It was my question. आपका प्रश्न है कि हाँ, कि आपके गुरुजी संत नहीं थे, वो एक सांसारिक अवस्था में रहते थे,
तो क्या कोई भी व्यक्ति ऐसे सांसारिक अवस्था में रहने वाले को गुरु बना सकता है या पा सकता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ मैं 2 बातें कहूंगी। सबसे और पहले आप गुरु बने, आप गुरु बने। हाँ, वो तो मुझे दीक्षा के बाद मिले थे। अच्छा, ओके। हाँ, मेरे बहुत सारे गुरु रहे हैं जिंदगी में, और बहुत सारे ऐसे गुरु रहे हैं जो साधु वेश में रहे हैं, जैसे आचार्य उपाध्याय साधु होते हैं वैसे ही। और लेकिन जो इनलाइटेंड वन रहे हैं, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और जिन्होंने हमारी सारी आंतरिक शंकाओं का समाधान दिया, और हमारे भीतर जो ध्यान का अनुभव जिनकी कृपा से हुआ, वो आत्मज्ञानी विराट गुरु जी है। वो विराट गुरु जी जो है वो गृहस्थ अवस्था में रहते थे, लेकिन वो संत थे। अब देखो, जैन धर्म में हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है संत मतलब गृह त्यागी। अगर अपन हिंदू धर्म में बात करें तो वहां संत का मतलब गृह त्यागी हो ऐसा जरूरी नहीं है। कितने ऋषि मुनि हुए हैं जो गृह अवस्था में रहते हुए ऋषि रहे हैं और ज्ञान देते रहे, है ना। दूसरी बात, जैन धर्म में भी कहा जाता है कि 2 तरह के संत होते हैं, एक यूनिफॉर्म्ड जिनको कहते हैं प्रतिवेशित साधु, और एक अनयूनिफॉर्म्ड जो यूनिफॉर्म में नहीं होते लेकिन साधु होते हैं। तो मैं विराट गुरु जी के लिए कहूंगी कि वो यूनिफॉर्म में तो साधु नहीं थे, लेकिन अनयूनिफॉर्म में वो साधु ही थे। बल्कि हम आज मौजूदा साधुओं से बहुत श्रेष्ठ अवस्था के अंदर वो थे, क्योंकि वो त्यागमय जीवन जीते थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति थे, जिसकी आत्मा जागृत हो गई हो, जो जन्मों जन्मों के योगी पुरुष थे, जो बचपन से ही उनको भीतर में वो ज्योत जागृत हो गई थी। तो ऐसे गुरु की वाणी सुनकर के हमारे भीतर बहुत जागृत हुआ, आत्मज्ञान प्रकट हुआ। इसीलिए वो गुरु मेरे लिए महान परम उपकारी गुरु हैं। और बाकी सारे गुरुओं ने बहुत बहुत कृपा की, सबका ही उपकार है जो आज हम यहाँ तक है, और प्रतिफल एब्सोल्युटली हमारे सब गुरु है, माता पिता है, उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। उनके बिना, दैट इज आवर रियल एसेट, उनके बिना वी आर नथिंग, एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज कीप saying to you that keep showering your blessings on us like this. I would like to listen to one of your favorite conversation जो आपकी गुरु के साथ आपकी हुई है। ये तो बताना मुश्किल है। I know बहुत सारे हैं, फिर भी कोई भी एक। बहुत मुश्किल। आप समुद्र में से इतने सारे रत्न वाणी मोती उठा के लाओ, फिर बोलो वो सबसे बेस्ट कौन सा है। तो अगर वो सबसे बेस्ट है तो फिर हमें और डीप जाना चाहिए कि और क्या क्या निकलेगा उसमें से। हाँ, तो एक्चुअली इतनी सारी अलग अलग टाइम में बहुत सारी अलग अलग बातें हुई है, तो आई कांट से एनीथिंग। पर हाँ, एक बात है कि एक बार जब उन्होंने कहा था कि इसी जीवन में सब कुछ संभव है और आपके साथ होगा, तो वो बात अद्भुत रही। जब उन्होंने विश्वास जगा दिया कि इसी जीवन में आत्मज्ञान संभव है और आपको होगा, तो बस उसी बात ने भीतर में एक अलग ही एनलाइटमेंट दे दी। वो स्टार्टिंग में, मतलब जब गुरुजी मिले ही थे तब की बात है। मतलब हम बहुत मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और उन्होंने हमारे क्वेश्चंस को बिना हमारे से बोले, मतलब हमने क्वेश्चन पूछा नहीं, उन्होंने सबके आंसर किए। ओके, वो ही तो बात होती है ना, जब आप एक गुरु बनाते हो तो आप क्वेश्चंस पूछो उसके पहले वो समझ जाते हैं कि ये कौन सी कश्मकश में है। और फिर वो अपने वर्डिंग्स में बोलते हैं। हाँ, और मैं तो ये भी कहूंगी गुरु बनाते हो, वो गुरु है और उन्होंने हमें चुन लिया, मैं ये कहूंगी। उन्होंने अपने ज्ञान के लिए हमें चुना, बस। वी आर लकी। सही बात है। गुरुमा, इज मोक्ष पॉसिबल इन दिस एरा, एंड व्हाट इज द पाथ टू मोक्ष? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या मोक्ष इस एरा में संभव है और उसका क्या रास्ता है। जी हाँ, मोक्ष हमेशा संभव है, हमेशा संभव है। और जैनिज्म is essential for achieving salvation or nirvana? Not in terms of Jainism word, but this is the real path, this is the true path, जो हमें अपने आत्म मुक्ति के रास्ते का सही ज्ञान देता है। उसके बाद में जर्नी तो हर व्यक्ति को अपने अंदर ही करनी होती है। Lovely, wonderful. बाहर के सारे शब्द हमें सहायता कर सकते हैं, ये तो इंटरनल जर्नी है। Very true. तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे ऑडियंस से, लोगों को, कि ये जो कोविड-19 हुआ है अभी, और ये जो आपने पहले हमें बताया कि सामूहिक ये कुछ भी हम सब ने कुछ किया है, कि दैट वी ऑल आर फेसिंग इन देश विदेश एवरीवेयर, सो व्हाट वी शुड डू इन राइट नाउ टू स्टे, अपने आप को बचाने के लिए, हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनको भी बचाने के लिए समूह क्रिया क्या करनी चाहिए?
बहुत सुंदर आपका प्रश्न है कि कोविड-19 के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन सब से अपने आप को बचाने के लिए और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। यहाँ मैं जैनिज्म के आपको 3 सूत्र देना चाहूंगी। पहला सूत्र जैनिज्म का ये है, जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी, वो है पौषध उपवास की साधना। इसमें क्या होता है कि हर 15 डेज में एक साधक अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करता है। वो पौषधशाला में, अपनी पूजा स्थान में, अपने उपाश्रय स्थानक में जाकर के उपवास में रहता है, ध्यान में रहता है और बाहरी दुनिया से अपना आपको डिस्कनेक्ट करके अपने आप का खोजी बनता है। जो ये विधान जैन दर्शन में, जैन साहित्य में, जैन समाज में प्राचीन काल से चला रहा है, और इस विधान को आज भी अपनाया जाए, हर 15 दिन में यानी पूर्णिमा और अमावस्या के समय में अगर व्यक्ति सेल्फ क्वारंटाइन करे, एकांत में रहकर के आत्म साधना करे, तो उसके भीतर का वो जो स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होगा, वो जो उसका फिजिकल इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसकी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसकी वजह से वो दुनिया के बहुत सारे दुष्प्रभावों से अपने आप को मुक्त रख सके। और अगर हम पहले से ये कर लें तो शायद हमें इतना बड़ा क्वारंटाइन कभी लेना ही ना पड़े, है? दूसरा पॉइंट, जैन धर्म में श्रावक यानी गृहस्थ के लिए, हाउस होल्डर के लिए कुछ विधान, कुछ व्रत दिए गए हैं। उनमें एक व्रत आता है उपभोग परिभोग का परिमाण करना, यानी जो भी हम कंज्यूम करते हैं उन सब में हमें अपनी खुद की सजगता से लिमिट्स बांध लेनी चाहिए कि हम इतना ही अपनी जिंदगी के आवश्यक कार्यों के लिए उपभोग में लेंगे। इस सब चीजों से अपने आप को मर्यादित कर लेते हैं। अगर हम सेल्फ लिमिटेड हो जाए तो कितना अच्छा हो कि बाद में प्रकृति हमें जबरदस्ती किसी लिमिटेशन में ना डाले, तो बाद में हम गलती करके पछताएं, इससे अच्छा गलती ना करें। तो ये बहुत अच्छा विधान है। उपभोग और परिभोग की सारे ही साधनों के प्रति हमें अपने लिए मर्यादाएं निर्धारित करनी कि हमें जितनी आवश्यकता है उसी को जिंदगी में जीना, अनावश्यकता से हमेशा बच के चलो। चाहे वो अनावश्यक खान पान हो, अनावश्यक खरीदना हो, सामानों को इकट्ठा करना हो, अनावश्यक बोलना हो, अनावश्यक आना जाना हो, हर अनावश्यक से अपनी वृत्ति को, प्रवृत्ति को बचा करके रहना सीख जाए, तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को इतना बेहतर बना लेंगे कि आने वाले समय में हमारे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आई थिंक ये यूनिवर्सली अपनाया जाना चाहिए। और थर्ड पॉइंट कि हम इस प्रकृति के लिए हमेशा आभारी बने, ऑलवेज थैंकफुल बने कि नेचर है तो हम हैं। हम भूल गए कहीं ना कहीं, हमें लगने लगा हम ही हम हैं और नेचर हमारे लिए है। हम इस नेचर को, पूरी प्रकृति का दोहन करने लग गए थे अपने सुखों के लिए। हमें अपना ये विजन थोड़ा सही करना होगा कि नेचर है तो हम हैं, सबके होने से हमारा होना है। अगर हम सबके सुखों के लिए अपनी सबके सुखों में हमारा सुख ऐसे सोच करके जीने लग जाएं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीने का तरीका ही ऐसा होगा कि हमारी भावनाएं शुद्ध होगी, हमारा व्यवहार बहुत विवेकपूर्ण तरीके से होगा और बहुत प्रेममय तरीके से हो पाएगा। अगर ऐसा होता है, ये 3 चीजें हम अपनाते हैं जैनिज्म की, तो मैं समझती हूँ कोविड-19 के इफेक्ट से भी और आने वाले समय में कभी कोई ऐसे इफेक्ट्स पैदा ना हो, हम उन दोनों से बच सकें। वंडरफुल, वेरी नाइस। इसमें स्पेशली आपने जो बोला दैट वी नीड टू रिस्पेक्ट नेचर, वो अभी बहुत जरूरी है। मैंने जैसे ही ये कोरोना स्टार्ट हुआ था, गुरुजी मैं आपको एक पेंटिंग दिखाऊंगी, मे बी राइट नाउ आफ्टर द शो और समथिंग। मैंने खुद ने एक सब फील किया और मैंने एक पेंटिंग बनाई है। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू दैट एंड प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन दैट, दैट व्हाट यू फील ऑन दैट। Yes, yes. And it was a wonderful conversation. I am feeling very honored today that मुझे एक चांस मिला आपके साथ एक 1-to-1 सेशन करने के लिए, एंड आज मुझे भी बहुत सारी चीजें मैंने नोट की हुई है. I have earned from you and thank you so much and keep showering these blessings of yours always on us. Thanks to you also. कल्पना जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, आप दोनों को जिन्होंने ये आयोजन रखा और इसके माध्यम से कई सारी बातें प्रकट हो पाई। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय हो। Thank you. Guru Ma. Now we'll take few questions from our audience also. They Yes, would yes. like This was Krupa. I would like to say something. Yeah. Krupa. Yeah, please. Incredible, awesome, heart-to-heart conversation. Thank you. I hope all my audience और इतना spiritual awakening हुआ है, शब्द नहीं है.
थैंक यू सो मच. आपका आई कैन फील यू फ्रॉम हियर. वो Yes, we get that aura from you. यूट्यूब में देखती हूँ और वो वहां से सीख करती हूँ और आज लाइव 1-to-1 करके सीख कर रही हूँ. काफी लोग जुड़े हुए हैं. ये सारा यूट्यूब लाइव भी चल रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है. काफी लोग आपकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और ऐसे मोमेंट में एक कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ संभव होगा. तो शायद भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. And thank you so much, Guruma, for your precious time. Not wasting much time, let us take quick question. So now, those who have questions, जिनको कुछ पूछना है महाराज साहब को, आप उनका हाथ रेस कर सकते हो. You see, I want to really thank everyone. You see, I really want to thank Guruma that I got an opportunity. That see, thing is like that a person like me, I don't know. You see, I'm not really sure whether I deserve all of that, but at least I was really blessed to have a conversation with her a couple of times. Okay, so straight coming down to the question is that I want to know that if a person, okay, is just facing a lot of difficulties, you see, in his or her life, and see, so these difficulties are something which is never ending. Do you think, okay, that if somebody starts praying, or if somebody starts putting a request to the Lord, can things change for that person in his or her life? If he has no doubt. Yes. हाँ, अगर कोई व्यक्ति इतने विश्वास से भर के कहेगा तो जो वो कहेगा वो होगा. लेकिन उसके बावजूद हमारा ये कहना है कि कोई ईश्वर परमात्मा को आप इस तरह से मत यूज करो कि वो आपकी सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर दे. ये हमारे रॉन्ग तरीका है, गलत तरीका है प्रेयर करने का. बल्कि ये कहो कि आप मेरे साथ हो, मुझे डरने की क्या बात है, जो भी सिचुएशन आएगी मैं इसमें से गुजर जाऊंगा क्योंकि आप मेरे साथ हो. ऐसे सोच के चलो. ये मत कहो कि डिफिकल्टीज ना आए. आप देखो कोई भी भगवान हुए, चाहे लॉर्ड जीसस को ले लो, चाहे मोहम्मद साहब को ले लो, चाहे राम भगवान को, कृष्ण भगवान को ले लो, आप जिस पे भी आस्था रखते हो, क्या ऐसे कोई भी एक ईश्वर है जिसके की जिंदगी में कभी कठिनाई ना आई हो? और क्या ऐसा कोई ईश्वर है जिसकी जिंदगी की कठिनाइयां आपकी जिंदगी की कठिनाइयों से कम रही हो? जितने कृष्ण की जिंदगी में कठिनाइयां थी, जितनी राम की जिंदगी में कठिनाइयां थी, जितनी महावीर की जिंदगी में कठिनाइयां थी, उतनी तो हमारे में से किसी की जिंदगी में नहीं है ना. जी. तो कठिनाइयां भगवान दूर कर दे ऐसी प्रार्थना करना गलत है. वो उन कठिनाइयों में निकल के भगवान हो गए. आप भी इन कठिनाइयों से निकल के भगवान हो सकते हो. ऐसा सोचो. Thank you so much. I'm really blessed. Thank you, my dear friend. Happy to see you. Thank you for joining in. No, it's my pleasure. Yeah. Siddharth ji, please go ahead. बाबसी, जो 14 राजलोक जो है ना बाबसी, 14 राजलोक और 14 गुणस्थानक, दोनों का क्वांटिटी एक ही है, 14. तो इसमें कुछ कनेक्शन है क्या बाबसी? हाँ जी, थोड़ा बताइए प्लीज. धन्यवाद. प्रश्न ये कि 14 राजलोक और 14 गुणस्थान में कोई कनेक्शन है क्या? हाँ. तो पहले आप ये समझो कि लोक का मतलब अगर बाहरी लोक करो तो कोई कनेक्शन नहीं है. और लोक को अगर यहाँ अपने आप के वजूद की तरह देखा जाए कि हम ही हमारा लोक है. वी आर यूनिवर्स विद इन आवरसेल्फ. हम ही हमारे लोक है. तो हमारे भीतर 14 स्टेप्स है जिनको हमें क्रॉस करना है, और जिसको क्रॉस कर देता है तो मुक्त हो जाते हैं. ओके. क्योंकि लोक एक्चुअली हम खुद लोक है. हम में से हर एक व्यक्ति पूरा विश्व है. जैसे कहते हैं ना, एक बूंद पूरा समुद्र है, एक बीज पूरा वृक्ष है. ऐसी हर एक व्यक्ति पूरा यूनिवर्स है, पूरा लोक है. और जब वो अपने भीतर के 14 स्टेप्स को, 14 तलों को जब क्रॉस कर लेता है तो वो लोकनाथ हो जाता है. लोकनाथ. Thank you, Siddharth ji. Anybody else? Yeah. प्रणाम महाराज साहब.
माना साहब, आपने अभी मोक्ष के बारे में बताया था कि एक क्वेश्चन आया था कि क्या मोक्ष अभी संभव है। तो मुझे बस वो रिफ्रेज करके पूछना है कि क्या हम लोग इस भव में, मतलब जैसे कि मैं, मेरी मम्मा, हम बाकी लोग, क्या हमको इस भव में अभी केवल ज्ञान हो सकता है कि, क्योंकि मतलब जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उसमें अब तक मैंने यही अंडरस्टैंड किया है सो फार, जो भी व्याख्यान से, मम्मी पापा से, महाराज साहब से, कि ये सिर्फ चौथे आर्य में पॉसिबल है, कि जब भगवान थे मतलब उस आर्य में पॉसिबल है, और अभी हम मनुष्य में वो कैपेबिलिटी और एबिलिटी नहीं है कि हमें वो चीज हो सके। हम अभी वो पुरुषार्थ कर सकते हैं और आगे जाके हमें हो सकता है, पर अभी इस आर्य में, इस भव में पॉसिबल नहीं है। तो आप उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट करके समझा सकते हैं? जय हो भाविका जी। ऐसा ही हम सबको बचपन में सिखाया गया है कि इस आर्य में केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता है। हमें बहुत कुछ ऐसी बातें सिखाई गई जिससे हम अपने आप को बहुत सीमाओं में बांध के रख चुके हैं। हमारी सोच बहुत सीमितता भरी हो चुकी है। और ये जो हमारे को टीचिंग्स मिली है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कम्प्लीटली रॉन्ग है, पर मैं ये कहूंगी कि एक अलग टाइप की टीचिंग है, बट एक्चुअल ऐसा नहीं है। सत्य यह है कि मोक्ष क्षण क्षण होता है। शनै शनै बंध, शनै शनै निर्जरा, शनै शनै मोक्ष। इसके लिए आपको बहुत विस्तार से, आप कभी हमारा अगर तत्वार्थ अधिगम सूत्र की टीचिंग्स को सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि मोक्ष का मतलब क्या होता है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है हम देह छोड़ करके सीधे शिला पे विराजमान हो, उसका नाम मोक्ष है। क्षण क्षण मोह मुक्त जीवन जी पाना, क्षण क्षण अपने भीतर के कषायों से अप्रभावित होना, वह मुक्ति है। और मुक्ति किसी एक क्षण में होगी ऐसा नहीं है, क्षण क्षण होती है। इसका एग्जाम्पल से समझो कि अगर आप कोई कपड़ा सी रहे हो, या प्रभा शाह जी का एग्जाम्पल है कि वो कोई पेंटिंग बना रही है, तो क्या वो फर्स्ट टाइम में जो उन्होंने ब्रश फेरा उसी से पेंटिंग बन जाएगी, या लास्ट टाइम में ब्रश फेरा उससे पेंटिंग बनेगी? फर्स्ट टाइम से एक शुरुआत होगी। अगर हम ये कहते कि लास्ट टाइम वाले ब्रश फेरने से उनकी पेंटिंग पूरी होती है, तो उस लास्ट को फर्स्ट बना लो, लेकिन नहीं ना। फर्स्ट टाइम का और हर एक बार का, जितनी बार वो अपना ब्रश लगाएगी उतनी बार वो पेंटिंग बनती जाएगी। ठीक है, तो क्षण 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 निर्जरा होती जाए, वो मुक्ति है। ऐसी निर्जरा कि वापस नया बंधन ना बांध रहे हो, तो हर पल की ऐसी निर्जरा करते जाओ कि नया बंधन न बंधे, तो वही पल हम मुक्त हुए। इसलिए शनै शनै मुक्ति होती है। तो मुक्ति के पहले पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझोगे, अगर चाहोगे समझना तो आप जरूर यूडेमी पे जाइए। यूडेमी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर हमारे तत्वार्थ सूत्र के लिंक्स पड़े हैं, बहुत सारे वीडियोस है, आप उसको सुनो तो आपको मोक्ष समझ में आएगा। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो मेरा कहना है कि मुक्ति क्षण क्षण होती है और हो सकती है अभी इसी क्षण। और ये बात आगम प्रमाण से भी कहते हैं हम, पर चलाई गई बातें बहुत सारी ऐसी होती है जो हमने परंपराओं से सुनी है, और हम उसमें कई बार रिसर्च नहीं करते, इसलिए हमें लगती है। साहिब जी, मुझे ये समझ आया कि मोक्ष इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यस, ये बट हाँ, लेकिन ये जो केवल ज्ञान का कॉन्सेप्ट है ना हमारा सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा उस पे ज्यादा एम्फेसिस है कि क्या केवल ज्ञान की प्राप्ति भी पॉसिबल है? जैसे मोक्ष का आपने समझाया कि वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे। जो केवल ज्ञान है कि आपको you know everything that is happening around you, you know the past, the present, the future, you understand yourself deeply and everything, you have answers to everything। क्या ये चीज भी संभव है? पहली बात आप जानिए कि केवल ज्ञान और मोक्ष एक ही चीज है। केवल ज्ञान का होना ही मोक्ष होना है। ठीक है, मोक्ष और निर्वाण ये दो अलग अलग चीजें हैं। मोक्ष होने के बाद शरीर का छूट जाना, ऐसा छूटना कि दोबारा शरीर धारण नहीं होगा, उसका नाम निर्वाण है। पर मोक्ष यानी केवल ज्ञान हो जाना, मोह का क्षय हो जाने से मोक्ष हो जाता है, और दैट इज केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान का मतलब ये नहीं जैसा हमको अब तक सिखाया गया, आप पूरी दुनिया को जान लेते हो, सारे भूत भविष्य वर्तमान को जान लेते हो, ये हम बच्चों को सिखाने के लिए बनाई गई डेफिनेशन है। हकीकत में है कि आप केवल ज्ञान ही हो, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इट इज नॉट समथिंग आउट ऑफ यू, इट इज यू। ये तुमसे बाहर की कोई चीज नहीं है, हम ही केवल ज्ञान, ऐसे समझो। हम ही आत्मा है, हम ही ज्ञान स्वरूप ही है। ठीक है ना, जब हम अपने भीतर के उस स्वरूप को जगा लेते हैं, प्रकट हो जाता है, तो उसको केवल ज्ञान कहते हैं। और उसको प्रकट होने में कोई देरी नहीं है, केवल हमारा रॉन्ग कॉन्सेप्शन, मतलब मिसकॉन्सेप्ट होना ही, मिसकॉन्सेप्ट रखना ही हमारे बीच में बाधक है। ठीक है, तो
इसलिए इस मिथ्या दर्शन को, मिथ्या ज्ञान को दूर करो, तो आपको समझ में आएगा आप ही तो केवल ज्ञान हो। लेकिन कब होगा ये? जब आप अपने भीतर की सारी मिथ्या सोच को दूर कर पाओगे, और उसके लिए आपको सम्यक ज्ञान लेना होगा। तो सम्यक ज्ञान आप प्राप्त करने के लिए Divya, can we have Divya? माथे मंदांग साहिब जी, साहिब जी मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग इतना धर्म करते हैं कुछ लोग, और फिर धर्म के साथ वो इतना कर्म भी करते हैं, फिर भगवान उनकी तरफ क्यों नहीं देखता है? वो अपने घर के लोगों को परेशान करते हैं, बाहर के लोगों को परेशान करते हैं, फिर भगवान उनकी तरफ क्यों नहीं देखता है? जय हो। आपका प्रश्न है कि बहुत लोग बहुत धर्म भी करते हैं, फिर बहुत सारे कर्म भी करते हैं, बहुत गलत काम भी करते हैं, भगवान उनकी तरफ क्यों नहीं देखता है? अब आपको क्या लगता है कि भगवान के देखने में कोई कमी है? एक्चुअली एक बात समझो, जैन दर्शन को समझो और यूनिवर्सल लॉ को समझो कि कोई भगवान हमें अपने कर्मों का फल नहीं देता है। आपने मिर्ची खाई, आपका मुंह जला, तो भगवान ने जलाया या मिर्ची ने जलाया? आपने मिश्री खाई, आपका मुंह मीठा हुआ, मिश्री खाने से मीठा हुआ या भगवान ने मुंह मीठा किया आपका? ठीक है, कर्म अपना फल खुद ब खुद देता है। ठीक है, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, और इसको फल को वापस आप साइंटिफिकली समझो। ये क्या हमने जो बातें सुनी ना, सारी कहानियों के रूप में, पुराणों के रूप में सुनी है, तो हमें लगता है कि भगवान की कभी शाप हो जाएगा, उसको फल मिल जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, उसके सारे बुरे कर्मों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता इस यूनिवर्स के अंदर में। ये बिल्कुल यूनिवर्स एकदम साइंटिफिकली गति करता है। ठीक है, जो जैसा भाव करता है उसके साथ वैसा होता है। अब जो अच्छा कर्म कर रहा है उसको अच्छा फील भी होएगा, जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरी फीलिंग मिलेगी। एंड योर फीलिंग इज योर फल। व्हाट इज फल? योर फीलिंग इज योर फल। ओके, आप कोई काम करते हुए मन में खुश हो रही हो, दैट इज योर फल। और आप कोई काम, अच्छा काम भी करते हो, उनमें बहुत दुखी, सपोज आप उपवास किया और उपवास करके दुखी हो रहा है, यार काहे को उपवास किया, मन ही नहीं लग रहा, सिर भारी हो रहा है, क्या करूं? अब आपको उपवास का फल क्या हुआ? आपको बुरी फीलिंग हुई, दैट इज योर फल। आपने उपवास किया और बहुत आनंद बनाया कि बहुत अच्छी भक्ति लगी, ध्यान लगा, आज मेरी बॉडी ने डिस्टर्ब ही नहीं किया, मैं बड़े आनंद के साथ प्रभु के साथ भावों में मस्त रहा, तो आपको अच्छी फीलिंग हुई, दैट इज योर फल। ओके, तो इस ऐसे सोचो ही मत कि भगवान क्यों नहीं देखता है, ऐसा नहीं है। हर आदमी जो जैसा फील करेगा वैसा खुद ब खुद फील करेगा ही, क्योंकि उसकी आत्मा ही साक्षी है ना। आप ही आपके क्रिएटर हो, आप ही आपको फल देने वाले हो, कोई और दूसरा नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने आप को क्लियर करो, खुद को क्लीन एंड क्लियर करो। ओके 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 ओके, कैन यू म्यूट दिव्या? ओके, गुरु माँ, एक मेरे डैडी जी ने क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे पूछने के लिए। पूरा भक्त कर्म के कारण जो होता है वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मास, एंड पास्ट कर्मा की निर्जरा हम कैसे कर सकते हैं? पास्ट कर्म की निर्जरा हम कैसे कर सकते हैं? निर्जरा के कई सारे तरीके हैं। पहला है कि वो जब कर्म उदय में आएगा तो वो आपको फल देगा। जब वो फल दे रहा होगा, यानी जब आपको फील करवा रहा होगा, चाहे वो अच्छा या बुरा, तब आप अच्छी फीलिंग होने पर घमंड ना करें और बुरी फीलिंग होने पर दुखी मत बने, शोक ना मनाए, बल्कि दोनों हालत में अपने आप को समभाव में रखें। तो क्या होगा कि कर्म आया, फल दिया और चला गया, आपने समभाव में रहे, न्यूट्रल फेज में रहे। और नहीं तो क्या होता है, जब अच्छे दिन होते हैं आदमी अहंकार में चला जाता है, बुरे दिन होते हैं तब आदमी दूसरों को ब्लेम करने में, लड़ाई झगड़ा करने में, है ना, बुरी फीलिंग में चला जाता है। और तो बुरी फीलिंग से वापस लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बुरी फीलिंग फिर बुरी फीलिंग को लाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कोई भी कर्म की निर्जरा करनी है तो एक सिंपल सा फार्मूला, इस टाइम के अंदर न्यूट्रल फेज में रहना सीखो, समभाव में रहना सीखो। और अगर समभाव नहीं साधना आता है तो कम से कम सकारात्मक भाव में तो रहो, सद्भाव में तो रहो कि भैया जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ऑल इज वेल। Yeah, thank you so much. I think can we proceed for few more questions, Guru, if you allow me? Yeah, we have Vilas Porwal. He has raised his hand. So can we unmute him? Mathe Bandami Marasa. My question is that you are the divine side, what I'm expressing. What is my bad luck that you got me at the age of 67? Question one.
The question number 2, that do you recognize Santhara? The third thing, because I don't know much about Jainism, so in a simple language, I ask you that if I have a previous history, just imagine doing 4 murders and a lot of bad things, but at last minute, I have a repentance and take a Santhara, then how much karma, bad karma will be burnt? Because Jainism say the karma, nobody cannot escape the karmas. But at last minute, I have a lot of repentance. So then how much grace I could get through Santhara? Huh? And very first question I take you, कि महाराज साहब, मैं 67 का हो गया हूँ, आप इतनी देरी से क्यों मिले हो? क्या कर्मों में कमी रही है? जय हो। मिलना कब होगा किसका किसके साथ में, ये सब तो नियति संयोग है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम किसी भी क्षण मिले हो, महत्वपूर्ण कहते हैं ना, जीवन में लंबाइयां नहीं गहराइयां होती है। अब आपका क्वेश्चन यह है कि कोई आदमी अपनी जिंदगी में कुछ भी कैसा भी कर्म किया हो, अगर अंतिम समय में वो पश्चाताप प्रायश्चित करके संथारा ले, तो उसके कितने बुरे कर्म निर्जरित हो सकते हैं। तो ध्यान दे कि कितने, हाउ मच, वो क्वांटिटी तो नहीं बता सकते कभी भी, लेकिन इतना जरूर है कि अगर उसने भावपूर्वक संथारा लिया है और भावपूर्वक प्रायश्चित किया है, पूरे ज्ञान पूरे भाव के साथ में, तो बहुत संभव है कि वो अपने भीतर एक नई अवस्था प्रकट कर ले और एक अच्छी गति में चला जाए, जहां जाने के बाद में उसको अपने बुरे कर्मों को भी ज्ञान के साथ निर्जरित करने का मौका मिल जाए। और वैसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझे इस बात को कि रात कितनी घनी क्यों ना हो, अगर हम एक दिया जला दे तो हमारे चारों ओर का अंधेरा तो हट ही जाता है। तो अगर अपने भीतर भक्ति का, प्रेम का, ज्ञान का एक दिया भी जलाया, चाहे वो मरने के क्षणों में ही क्यों ना जलाया, वो भी हमारे चारों ओर का अंधेरा तो मिट ही जाएगा। और वो दिया कितनी देर तक जलता रहता है, वो सबकी अलग अलग बात है, ठीक है ना। ये तो भावों का जगत है। इस भावों के जगत में तो क्षण क्षण के अंदर अंतर आ जाता है। एक क्षण में आदमी अपने भावों में सद्भावना और भक्ति भावना ला करके देवलोकों तक की यात्रा कर लेता है, और अगले क्षण में अगर भाव गिर जाए, डाउट आ जाए, डिजायर आ जाए, मन के अंदर कोई दुविधा आ जाए, तो आदमी एक ही क्षण में वापस नरकगामी भी हो जाता है। प्रसन्नचंद्र राज ऋषि का एग्जाम्पल जैन धर्म में बहुत फेमस है इस संबंध में। तो एक ही पल में वो साथी नरक में जा रहे, अगले पल के अंदर उनका मोक्ष निर्वाण भी हो जाता है। तो देखिए कि भावों का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी भी क्षण आदमी कैसी भी भाव बदल करके भावधारा बदल करके। उपाध्याय अमर मुनि जी कहा करते थे कि जीवन है नदिया की धारा, जब चाहो बदल सकती है, नरक लोक से स्वर्ग लोक से जब चाहो जुड़ सकती। Thank you very much, Maharaj Sahab. जय हो। We can take one more question. There is Ashish Jain Kota with us. I suppose we can take one more question. Yes. Ashish, can you unmute them? Yes. Ashish ji, please ask your question. हाँ, मथन वंदनी महाराज जी, जब हम कोई छोटे छोटे नियम कभी सुबह घूम के जाते हैं और ले लेते हैं, बाद में वो नियम मतलब हमसे छूट जाते हैं, तो फिर क्या उनका हम कैसे सही कर सकते हैं, यानी या फिर मतलब उनसे जो पाप लगता है लग रहा है तो उनको कैसे बचा जा सकता है? हाँ, अगर हम कोई नियम लेते हैं उसके बाद में हम भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो इसको पाप लगता है। इसको इस लैंग्वेज में ना समझ करके ऐसे समझो कि अजागृति के कारण से आपका धीरे धीरे आत्मविश्वास चला जाएगा, है ना। और अजागृति के कारण से आपसे पाप वैसे ही होता जाएगा, क्योंकि अजागृति, अनअवेयरनेस वही पाप है, अनअवेयरनेस ही पाप है, ठीक है। अब रही बात कि हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, जैसे होश आया वैसे ही दोबारा नियम ले लो और फिर उस नियम को जागृति से पालन करो, तो आप पुराने किए गए पाप को हो जाओगे। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन महाराज जी। यस। जैसे जो लौकिक देवी देवता होते हैं हमारे साथ, क्या वो हमें प्रताड़ित कर सकते हैं? मतलब उनका जो एक बोलते हैं कि रेस्पेक्ट तो हमें करना ही चाहिए, तो रेस्पेक्ट मतलब किस सेंस में, यानी हम उनकी पूजा अर्चना करें, उनकी वर्शिप करें, मतलब प्रश्न है कि लौकिक देवी देवता क्या हमें प्रताड़ित कर सकते हैं और क्या हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए? तो पहली बात है कि कोई भी देवी देवता हो या कोई भी मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, कोई भी हमें अकारण प्रताड़ित नहीं करता है।
कारण हमारे अंदर होंगे तो वे बाहर निमित्त बन करके आएंगे, ठीक है ना। तो अब हम अपने भीतर के कारणों को दूर कर लें तो कोई भी हमें प्रताड़ित क्यों करेगा। तो यहाँ पर भी बात वही आई कि सेल्फ रिफॉर्मेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यही हमारा रास्ता है, ठीक है ना। दूसरी बात कि हमें देवी देवताओं की रेस्पेक्ट करनी चाहिए क्या, न केवल देवी देवता की, दुनिया में प्रत्येक प्राणी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन डर के मारे नहीं, प्रेम से। जैसे हम प्रेम से अपने घर में आए मेहमानों की रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक इंसानों की रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसे प्रेम से सबकी रेस्पेक्ट करो। और हो सके तो पूरे 6 ही काय की जीवों को हमेशा धन्यवाद दो। चरम मंगल से जो भी लोग जुड़ते हैं, चरम मंगल हमारा जो संस्था का नाम चरम मंगल नाम से सब कार्य होते हैं, तो चरम मंगल से जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं, सबसे पहले हम उनको षटकाय प्रार्थना सिखाते हैं। पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, हरि तक को धन्यवाद, प्लस प्राणी को धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो इस प्रार्थना, ये पूरी प्रार्थना है, अभी तो हमने छोटी सी बोली आपको। तो इस प्रार्थना के द्वारा क्या होता है कि प्रतिदिन आप सुबह शाम 2 टाइम प्रार्थना करो और सृष्टि के सारे जीवों से क्षमा मांगो और सबको धन्यवाद दो, तो कोई भी आपको प्रताड़ित नहीं करेगा। और फिर सबकी रेस्पेक्ट तो करो, लेकिन डर के मारे मत करो और कुछ लोभ लालचों के भावों में आकर के कुछ मांगने के लिए मत करो, केवल उनको धन्यवाद दो कि आप सबका सहयोग है, सबका आशीष है, सबकी दुआ है, इसीलिए हम सब सुखी हैं। जैसे हम पूर्वजों को, बड़े लोगों को, बड़े बुजुर्गों को सम्मान देते हैं ना, ऐसे कुल देवी देवता भी होते हैं, लौकिक देवी देवता भी होते हैं, तो उनको आप सम्मान दो, अपमान मत करो। थैंक यू महाराज। जय हो। We have one more. I think Mark wants to come again. Can we take him? हाँ, yes, sure. Mark, please unmute Mark, please. You see, I've got 2 questions. You see, so then the first question is that it is said that when you are born, then everything is destined. So if you, okay, so if you were born, okay, so everything is designated. So when everything is fixed, okay, and when nothing can change, so how do you think that if we do prayers, you know, your destiny can change? So actually, you know, like I said, that's one question. You see, and my last question is that we read a lot in mythology about Lord Krishna, okay, where, you know, where it is said, you know, that he had the powers to stop an ocean, okay, where you see, so where, you know, where he could just fight with anyone on this earth. So is it possible, okay, is it possible that a person, you see, can stop oceans or can fight anyone, you see, that the Lord feels like? Okay, so these are my 2 questions. Excuse me, I've asked my 2 questions, so I was audible, or you want me to repeat that? No, we could hear you. Yes, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि जब हम मरते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ नियत होता है, तो यही आपका क्वेश्चन है ना? तो उसके बाद में क्या, लाइक था मेरा क्वेश्चन था कि जब हमारा बर्थ होता है उसी टाइम में सब कुछ फिक्स हो जाता है कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है, वो होने वाला है, और वो फिक्स होता है, कभी चेंज वो लोग बोलते नहीं हो सकता है। तो फिर कैसे बोलते हैं कि अगर हम कोई भी चीज श्रद्धा से करें, ओके, या प्रार्थना करें, सी, तो फिर वो तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। यस। तो आपका प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो सब कुछ नियत हो जाता है, तो फिर हम क्या अपने कर्मों से, श्रद्धा, आस्था, भक्ति, साधना से क्या अपने कर्मों को बदल सकते हैं, प्रारब्ध को बदल सकते हैं क्या? ठीक है ना? तो यहाँ आप समझना इस साइंस को कि ना तो सब कुछ नियत है और ना ही सब कुछ अनियत है। ओके, कुछ चीजें हैं जो ओके, कुछ चीजें हैं जो प्रीडिस्टाइंड होती है, नियत होती है, और कुछ चीजें हैं जो सदा ही अनियत होती है, जो कि क्षण आदमी को खुद को सेलेक्ट करनी होती है, तो चूज करनी होती है अपनी लाइफ में, ठीक है ना? जैसे आपके पास में ये टीवी सेट एक पड़ा है, अब इसके अंदर कितने प्रोग्राम्स है वो नियत है कि आपके पास में अगर 20 चैनल है तो 20 चैनल आपको इस टीवी सेट में मिल सकता है, ये नियत है। लेकिन इस 20 चैनल में से आप कौन से चैनल को किस समय क्लिक करोगे, ये अनियत है। ये आपका अपना उस समय का प्रेजेंट का विवेक काम करेगा, ठीक है? इस एग्जाम्पल से समझो, तो
अगर सब कुछ ही नियत होता तो आदमी को शिक्षित करने की क्या जरूरत थी, वो जानवरों की तरह रहता ना। लेकिन आदमी को बचपन से पैदा होने के साथ ही संस्कार दिए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है, ज्ञान विज्ञान सिखाया जाता है, उसको विवेक जगाया जाता है कि तुम सेलेक्ट करना सीखो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। तो इसीलिए सब कुछ नियत तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। आदमी के पास में कुछ चीजें हैं जिसमें आदमी बदलाव नहीं कर सकता। जैसे कि हम देखें कि कोई आदमी बना है तो अब वो आदमी इस समय में आदमी रूप में है, वो जानवर नहीं बन सकता है। जानवर रूप में वो आदमी नहीं बन सकता, उसके लिए उसको दोबारा जन्म ही लेना पड़ेगा। तो यानी कुछ चीजें तो हुई जो नियत हो गई है। जिस ट्रेन में बैठ गए उस ट्रेन की दिशा जिस तरफ है आपको उसी दिशा में जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन उसके बावजूद आप प्रतिपल कैसा सोचोगे, कैसा विवेक पैदा करोगे, प्रार्थना में रहोगे, थैंकफुल की फीलिंग में रहोगे, या आप ईगो फीलिंग में रहोगे, या आपका अपना प्रेजेंट का डिसीजन है जो कि नया कर्म को बना रहा है। तो आदमी अपने आप के प्रेजेंट के कर्म जो उसके हाथ में है उसको सुधारता जाए, वो हमारे हाथ में है प्रेजेंट, उसको सुधारते जाओ। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बाकी की परिस्थितियां हैं वो हम पूरी तरह से अपने काबू में नहीं ला सकते, लेकिन अपने मन की स्थिति है उसको हम पूरी तरह से काबू में ला सकते हैं। तो इसको समझो कि परिस्थितियां पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मन स्थिति हाथ में है। तो इस मन स्थिति को बदलने के लिए प्रेयर्स, मेडिटेशन, जाप, ये सारी चीजें बहुत उपयोगी है, इससे हम बदल सकते हैं। दूसरा ये पुराणों में हमने सुना है कि श्री कृष्ण ने अपने समुद्र को रोक लिया था, अपने ही पैर से समुद्र को रोक लिया था। तो क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? पुराणों में ऐसा लिखा है, बाइबल में भी ऐसा लिखा है कि अगर तुम एक बार पूरे विश्वास के साथ कह दो कि ये पर्वत यहाँ से हट जाए, मुझे रास्ता दे दे, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन पूरी आगे बात देना कि पूरे विश्वास से कह दो, मन में डाउट नहीं हो। अगर डाउट नहीं है तो आदमी अपनी क्षमताओं को इतने लेवल तक ले जा सकता है कि वो जैसा करे वैसा हो, और हो भी तो रहा है। आप देखो, आदमी ने तो सोचा था कि वो आकाश के अंदर पक्षियों की तरह उड़ेगा, है ना, लेकिन उड़ रहा है ना। तो हमारे पास में क्षमता हो, विज्ञान हो और विधि कला का ज्ञान हो तो हम बहुत कुछ वो कर सकते हैं जो श्री कृष्ण ने अपने तरीके से किया, हम अपने तरीकों से कर सकते हैं। पहले ऋषि मुनि ध्यान में बैठ करके दूर की घटनाओं को देखते थे, और आज हम केवल लैपटॉप खोल करके दूर के लोगों को देख रहे हैं। Absolutely, absolutely. Okay, so for now we will not be taking any more question. But मेरे पापा का अभी तक एक question, कृपया one question, last question I will be taking it. I know we are running short of time. My dad is messaging me again and again, और वो कह रहे हैं, we are saying past जन्म के कर्म को भोग रहे हैं. How do we know whether same past karma are creating karma for next birth? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग पास्ट कर्म के कर्मा जो भोग रहे हैं इस जन्म में, हमें कैसे पता चले कि ये जो पास्ट कर्मा के जो अब इस वक्त भोग रहे हैं इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करके जन्म में लेके जाएंगे? हाँ, प्रश्न ये है कि हम अतीत के जन्मों के कर्म इस समय भोग रहे हैं। हाँ। डिसाइड कर पाए कि इस जन्म में ये जो अतीत के कर्म भोग रहे हैं उसको हम अगले जन्म में भी लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे। अगर आपका माइंड आज की घटनाओं में अभी भी अटका हुआ है, आज के माहौल में अभी भी अटका हुआ है, तो कैरी फॉरवर्ड फाइल होगी। और अगर आपके माइंड से वो सारी फाइल्स डिलीट हो जाती है, आप ज्ञान पूर्वक उनको डिलीट कर देते हो, तो आपका फ्यूचर में वो चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं। इसीलिए जैन धर्म में प्रतिक्रमण की साधना पर बल दिया जाता है कि हर रात सोने से पहले व्यक्ति अपने दिन भर में किए गए सारे कार्यों को पहले याद करे, रिमाइंड करे, और रिमाइंड करने के बाद में सारे कार्यों को कन्फेस करके, इंट्रोस्पेक्शन करके कन्फेस करे और देन उनको डिलीट कर देवे, ताकि अपने माइंड के अंदर किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई राग द्वेष का विचार ना रखे, तो फाइल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। और मरने से पहले जो संधारा किया जाता है वो भी इसीलिए किया जाता है कि जीवन भर का प्रतिक्रमण आदमी कर ले, और जीवन भर में जो भी उसके माइंड में किसी के लिए गिला शिकवा है सबको निकाल दे, किसी के लिए मोह माया है उन सबको भी दूर कर दे, और अपने मन को एकदम निर्मल करके मृत्यु को स्वीकार कर ले, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। Thank you, Guru Ma. Thank you so much. It's truly a spiritual awakening. It's truly an honor to give us. I mean, usually all our webinars have been for an hour, but this have gone and it's never
voting process, but due to short of time, I think we have yet extended to 1 hour 45 minutes. We would go for Chattari Mangalam, and then we can give you a vote of thanks later after Chattari Mangalam, and then we'll wind up. Chattari Mangalam. Everybody can join your hands for Chattari Mangalam. Arhanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sahu Mangalam, Kevali Panatto Dhamo Mangalam, Chattari Logotama, Arhanta Logotama, Siddha Logotama, Sahu Logotama, Kevali Panatto Dhamo Logotamo, Chattari Saranam Pavachami, Arhante Saranam Pavachami, Siddhe Saranam Pavachami, Sahu Saranam Pavachami, Kevali Panatam Dhamam Saranam Pavachami. आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, जय हो जय हो जय हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। जय हो। Jai Ho Guru Ma. This is again a wonderful thing. Imagine Chattari Mangalam through telecast. Superb. Krupa, vote of thanks. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks to Sadhviji Vaibhavshriji Virat, who despite of a busy schedule has found time to grace this special interaction. We are extremely grateful to Sadhviji Vaibhavshriji Virat for sharing her words of inspiration and giving us valuable inputs on the current pandemic situation and showed us a path on how to tackle the situation in a spiritual and a holistic way. We admire you for your humbleness, your diligence, and your unwavering purpose. You have shown us how to be more effective human being, and for that we cannot thank you enough. Thank you so much. Your eminent presence has indeed made this interaction a memorable one, and we unitedly thank you from the bottom of our heart for your kindness, words, interest, and support. Thank you once again for joining us today. Thank you so much, Mathen Vandami Sahibji. Mathen Vandami. Thank you so much. जय हो जय हो, सब मस्त रहो। Thank you so much. Thank you so much. Thank you, guests, for coming in and joining in us. Thank you. Yeah, thank you to all our guests. Thank you so much to be the part of our session and make it more fruitful. Thank you. Thank you so much.